all. And let's not forget the mentors, Ms. Gabriela Gomez, Mr. Krish Norbert Netawat, and Mr. Jayant Kushwa, who made this performance truly soul-stirring. The harmony, the rhythm, the voices, it all came together so beautifully. Let's give them a huge round of applause. Music like this sets the perfect tone for our celebration, reminding us that when hearts come together, the result is pure magic. So true, Arav. And now, moving ahead, it's time to begin our today's program with an introduction. May we invite Zia Paliwal and Shivangi Thakur on stage. Good morning to all. I, Sia Paliwal, and I, Shivangi Thakur, on behalf of the Spirit family, we extend a warm and hearty welcome to our respected director, our beloved principal, diligent CEO, Medical College Coordinator, Chair Faculty Members, hardworking staff members, and the students, the lifeline of our college. As we know, we gathered here is to celebrate the feast day of our beloved principal, a tribute to her dedication, her love, and the vision with which she leads this institution. Sister, your presence is a reassurance that we are in a right place where knowledge is blended with value and learning is blended with care. And along with this, we also celebrate something very close to our heart, the Precious Talent Show, with the theme being Kaleidoscope, the colors of light. Just like a kaleidoscope where every tiny piece comes together to form endless spectrums, today's event shows us how different shades of joy, faith, and talent weave one beautiful story and create beautiful movement. This show is more than just performances. It is a celebration of new bonds, new friendships, and the courage to step forward. It is about discovering ourselves, expressing our hidden talent, and creating memories that we will cherish throughout our college life. So friends, we gather here today with gratitude and excitement. Gratitude for the guidance of our principal and excitement for the bright and vibrant journey that begins for us. Let's make this day more memorable with inspiration, joy, and togetherness. With heart full of happiness, we warmly welcome you all to this grand celebration, Principal Feast Day and Precious Talent Show. So bring your brightest smile and loudest cheer to begin this wonderful day filled with performance, laughter, and memories. Thank you. We now request the next pair of cameras to carry forward the program. Thank you, Sia and Shivangi, for such a heartfelt welcome. I, Aman Chhabra, And our Angel. are the next pair of this amazing event. Now we go to a very special gesture of warmth and respect. This token carries with it love, respect, and admiration for the entire college family. On behalf of all of us, as a symbol of gratitude and good wishes. I request the Honorable Director, Father Dr. Michael John, to present cards and sampling to our Principal, Sister Dr. Alice Thomas. Father, please. Thank you, Father, and thank you, Sister. Every milestone, every achievement, every memory becomes history only when it is penned down. The much awaited newsletter, Swagatam, is not just pages bound together, it's the voice of our students, the creativity of our minds, and the mirror of our journey. And to add to that, we also have the book by our principal, Sister Dr. Alice Thomas, titled Word of God, Stream of Grace, Volume 5. Now, let's invite the eloquent Dr. Swati Singh for further proceedings. Thank you. Honorable Director, respected Principal, Honorable Director, respected Principal, esteemed CEO, diligent College Coordinator,
effervescent faculty members, and lovely students, good morning. We wish a happy feast day to our dear sister principal. We pray Almighty God bless her with abundant joy, happiness and good health. आज मुझे निदा फाजली का शेर याद आता है कि मुंह की बात सुने हर कोई, दिल की बात ना जाने कौन, आवाज़ों के बाजारों में खामोशी पहचाने कौन. When feelings and emotions wear the literary graph become a powerful tool. St. Paul Institute of Professional Studies releases the newsletter Suswagatam exclusively for the newcomers, where they pour their thoughts and emotions with a colorful inks. And finally, it becomes a splendid bouquet. This is all done under our supervision, our erudite director, Reverend Father Michael John, and our spiritual principal, Sister Dr. Alice Thomas. Our sister principal prays for each one of us. She has a divine experience which she has shared in her book Word of God, Streams of Grace, which is to be released today on her feast day. This is a book of reflections of her deep devotion and strongly rooted life in the power of Word of God. Her every breath becomes a testimony to the divine, and it has been scripted into the immortal experiences. Now this is the time to release her book Word of God, Streams of Grace, Volume 5. I humbly invite our director, Reverend Father Michael John, Principal Sister Dr. Alice Thomas, CEO Dr. Rajesh Vyas, College Coordinator Dr. Megha Tare, I2LC Coordinator Dr. Goldie Jati, and Publication Committee Convener Professor Matthew M.J. to please come up on the stage. Once again, give them a huge round of applause. Thank you. For the newsletter, Suswagatam, Volume 16.1, I invite the Publication Committee members to join the dignitaries. नहीं बताइए, नहीं अभी नेट में आया, अब आ गया। Thank you, dignitaries. Thank you, everyone. Mother Mary is a true picture of faith and surrender. Her life teaches us that when we trust God, no burden is too heavy and no problem is too big. Many times we feel our struggles are unbearable,
But when we look at them with faith, we realize that God is already preparing a way for us. And that is the story of today's kid, a young man broken by difficulties, who finds hope and transformation through the example of Mother Mary. So now, dear audience, let's open our hearts and welcome them, the Believer Group, With a big round of applause. ये कहानी है अर्जुन की, जो अपने क्लास का टॉपर था। सारी रात मेहनत करता था, सपने बुनता था। हर जगह प्लेसमेंट होता देखकर भी उसके लिए हर बार सिर्फ एक नया रिजेक्शन आता था। उसके आसपास तालियों की आवाज थी, लेकिन उसके अंदर सिर्फ खामोशी गूंज रही थी। फिर से रिजेक्ट है क्या यार? अब मैं सब लोग लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और मैं यहीं पे अटका हुआ हूँ। हाँ, और क्यों ना अटके, सारे रिश्तेदारों के बच्चे कुछ ना कुछ बन गए हैं। चेन साहब के लड़के को देख, सीए बन गया है सीए। बस एक तू ही घर में बेरोजगार बैठा है। आपसे तो बात करना ही बेकार है, इसी वजह से मैं आपसे बात ही नहीं करता हूँ। माँ, आप हर वक्त मुझे बस बातों के ताने ही सुनाते रहते हो। कभी एक कागज का टुकड़ा पूरी जिंदगी की कीमत तोड़ देता है, और दूसरे की जीत का जश्न अपने जख्म को और गहरा बना देता है। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, लीजिए मिठाई खाइए। अरे बेटा, किस खुशी में मिठाई खिला रहे हो? हाँ हाँ, पहले बताओ किस बात की मिठाई है? आपके आशीर्वाद से एक अच्छी कंपनी में मेरा प्लेसमेंट हो गया है। वाह बेटा, शाबाश, चलो मिठाई खिलाओ। चलो, किसी का तो प्लेसमेंट हुआ। लीजिए आंटी। आंटी, वैसे अर्जुन कहाँ है? होगा अपने कमरे में, जाकर देख लो। मैंने आज तक किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, ना ही किसी के बारे में कुछ बुरा सोचा मैंने। फिर भी पता नहीं क्यों भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है। अर्जुन, ऐसा मत सोच, शायद भगवान ने तेरे लिए कुछ और प्लान बनाया हो। कभी कभी डिले होना, फेलियर मिलना, ये सब इसलिए होता है ताकि हम और स्ट्रॉन्ग बन सके। स्ट्रॉन्ग? अरे कब तक यार, हर बार वही रिजेक्शन। लगता है मेरी किस्मत खराब है। नहीं अर्जुन, किस्मत खुद लिखनी पड़ती है। तू हार मान जाएगा तो सब खत्म, लेकिन अगर तू लड़ाई करता रहा तो एक दिन जरूर जीतेगा। तू तो रहना ही दे, तेरा भी तो प्लेसमेंट हो गया, और तो और बैकबेंचर्स तक का भी हो गया, बस मेरा ही रह गया। अरे मेरे भाई, तो ऐसे निराश मत हो, तेरी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। थोड़ा सब्र रख, सही वक्त आएगा, तू जिस चीज का हकदार है वो तुझे जरूर मिलेगी। दुनिया मिठाई बांट रही थी, और अर्जुन अपने कमरे की अंधेरी 4 दीवारों में खुद से ही सवाल कर रहा था। बाप रे, आजकल के युवाओं को क्या हो गया है? क्या हुआ जी? अरे देखो, आज फिर एक लड़के ने फांसी लगा दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। हाँ, तो सही तो किया। जब कुछ ना कर पाओ तो मर जाना ही बेहतर है। माँ के शब्दों ने अर्जुन के दिल को छुरी की तरह छेद दिया। उस पल उसे लगा कि अब जिंदगी का कोई मतलब नहीं बचा। हारा हुआ, थका हुआ, उसने एक खतरनाक फैसला लिया। हाँ, तो सही तो किया। जब कुछ ना कर पाओ तो मर जाना ही बेहतर है। आंटी, अर्जुन अपने रूम में तो है ना? हाँ। अर्जुन, 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 इसने क्या किया? आगे, आगे जल्दी आइए। अर्जुन ने हाथ काट दिया है। अर्जुन, अर्जुन ने तुमने क्या कर दिया? अर्जुन, मेरे हाथों से तुमने इतना दुश्मन ले लिया। नहीं, दुश्मन मेरी थी क्या?
बीच सिर्फ एक पल का सहारा, कभी माँ के आंसू, कभी दोस्त का कहना, इंसान को जिंदा रखता है। अर्जुन साहब ठीक है ना मीता? हाँ शांता, अब अर्जुन ठीक है। डॉक्टर ने बोला है 2-3 घंटे में उसे होश आ जाएगा, तब तुम मिल लेना। अभी बैठ जाओ। मेम साहब, आप सुबह से यही हैं, आपने कुछ खाया पिया भी नहीं है। चलिए कुछ खा लीजिए। हाँ आंटी, शांता सही कह रही है। अर्जुन को जब तक होश आता है हम थोड़ा बाहर चलकर कुछ खा लेते हैं। बेहोशी के अंधेरे में भी इंसान के अंदर एक आवाज होती है जो उसे उसका असली रास्ता दिखाती है। डरो नहीं, मैं परमेश्वर का दूत। तुम गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म दोगी जिसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। ये कैसे संभव है? मैं तो विवाहित नहीं हूँ। समाज मुझे स्वीकारेगा नहीं और मेरी निंदा की जाएगी। तुम जिसे जन्म दोगी वो केवल मनुष्य नहीं होगा परंतु परमेश्वर का बेटा होगा जो जगत का पालनहार होगा। पर मरियम, जिसे तुम जगत के पाप कम कर सकती हो। समाज ने हमेशा ताने ही दिए हैं परंतु उसका फल बाद में सबको पसंद आता है। तुम डरो नहीं, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। मैं परमेश्वर की दासी हूँ और अगर मेरे इस त्याग से मनुष्य जाति के कल्याण के लिए कोई मसीहा आने वाला है तो आपका वचन मुझ में पूरा हो। कभी सपने हमें सिर्फ अपने लिए जीना नहीं बल्कि दूसरों के लिए मर मिटना सिखा देते हैं। माँ, माँ, बेटा क्या हुआ? इतना घबरा क्यों रहे हो? हम सब यही तो है। कुछ नहीं माँ, मुझे बस ऐसा लगा कि कोई मुझसे कुछ कहना चाह रहा है। साहब, ये मेरा छोटा बेटा है, इसे आपसे कुछ कहना है। भैया आप ठीक हो ना? ये क्या किया आपने? माँ हमेशा कहती हैं आप कभी हार नहीं मानते। हमारी बस्ती के बच्चों के लिए आप एक प्रेरणा हो। आप ऐसे हार नहीं सकते। हम तो आपकी मत मानते हैं, आपसे सीखते हैं। आप जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर मैं आपको कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। एक मासूम बच्चे के निर्दोष शब्दों ने अर्जुन के दिल में एक ऐसा दिया जला दिया जो अंधेरों से लड़ने की ताकत बन गया। तो बच्चों, आज हम कुछ जरूरी फॉर्मूले देखेंगे। पहला, ब्रैकेट में a प्लस b ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अरे दद्दू, ये एक्स्ट्रा 2ab कहाँ से आया? अरे हाँ दद्दू, ये 2ab भी कहाँ से लाए हो? अरे इतना पढ़ा लिखा होता तो मास्टर जी नहीं बन गया होता। ये सब छोड़ो, अगला फॉर्मूला देखते हैं। भैया देखिए, ये बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन इनके पास कोई है नहीं जो इन्हें दिशा दिखा सके। अर्जुन, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ। क्यों, क्या हो गया? अरे तेरा टॉप एमएनसी में सिलेक्शन हो गया है, ये देख ऑफर लेटर। मैं परमेश्वर की दाता हूँ और अगर मेरे इस त्याग से मनुष्य जाति के कल्याण के लिए कोई मसीहा आने वाला है तो आपका वचन मुझ में पूरा हो। ये तूने क्या किया? ऑफर लेटर फाड़ दिया जिसके लिए तूने इतनी मेहनत की थी। हाँ, मुझे पता है मैंने क्या किया है। तू सही था, ईश्वर ने मेरे लिए कुछ और ही प्लान बनाया है। तूने जो भी सोचा है उसमें मैं तेरे साथ हूँ। जीत सिर्फ एक नौकरी पाने में नहीं, असली जीत तब होती है जब इंसान अपने अंदर की रोशनी दूसरों तक पहुंचाता है। ये एक स्क्वायर है जिसके अंदर 2 स्क्वायर है, एक छोटा एक बड़ा। छोटा स्क्वायर है b स्क्वायर, बड़ा वाला a स्क्वायर। ये बचा है a और ये a टोटल 2ab। समझ में आया? अच्छा, अब समझ में आया 2ab कहाँ से आया। भैया अब हमें सब समझ में आने लगा है। अब हम सब लोग बहुत मेहनत करेंगे। जो कल तक अपनी हार रो रहा था, आज वही अर्जुन दूसरों की जीत का सबब बन रहा है। माया, माया सुन रही हो क्या? जल्दी आओ। अरे क्या हुआ? इतना क्यों चिल्ला रहे हो? क्या अखबार में फिर से किसी की मरने की खबर आई? नहीं माया, आज अखबार में हमारे जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी छपी है।
देखो हमारे बेटे की फोटो छपी है। अर्जुन ने बस्ती के बच्चों को पढ़ाकर उन्हें पास करवा दिया और वो भी बहुत अच्छे नंबर से। बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है। और इस तरह अर्जुन की कहानी हमें ये सिखाती है, जिंदगी की हार को कभी अंत समझना नहीं चाहिए, बल्कि हर हार एक नई शुरुआत का आमंत्रण होती है। जो कल तक अपनी हर रिजेक्शन को बोझ समझता था, आज वही रिजेक्शन उसके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बन गया। अर्जुन की कहानी एक मिसाल है कि जब हम अपने जख्मों को उम्मीद में बदल देते हैं तो हम सिर्फ खुद नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए रोशनी बन जाते हैं।